So hello guys, welcome to Unacademy and I am Shubdeep Datta, your chemistry mentor and educator. And today we will deal with the positional isomers. And let's get started. Okay. Okay. So guys, you are at the target top 100 ranks MST CET 2021, and the preparation will go on live from Monday to Sunday. Full preparation, daily live classes, and your chemistry classes is from 1 p.m. then again at 9 p.m. right? So let me give you a little brief about myself. I am Shubdeep Datta and I am an alumni of National Institute of Technology Durgapur. I have some 5 plus years of teaching experience guys, and I teach chemistry. Okay, I specialize in MHT, CET, IIT, JEE and NEET. Okay, so guys, let's crack MHT CET with India's largest e-learning platform, that is Unacademy. And if you get the plus subscription, you can get access to live and recorded courses from India's best educators guys. Okay, so please guys, get the plus subscription today. It is very necessary for all of you. So guys, uh, the first step towards it's to download the Unacademy learning app from the Google Play Store, and then you have to download the Telegram app, and then you have to write crack Maharashtra CET exam in the link, and then you can click to join the group, right? So guys, this is the monthly subscription plan. The monthly subscription plan is for 2700 rupees only, and if you go further you will find that for the 3 months program it is 6750. For 6 month program it is 12150. For 12 months it is 14850, and for 24 months guys it is 21600 rupees only. Furthermore, if you use this referral code guys, SHUBHDEEP, you will get a 10% flat discount, and you may then proceed to pay. Okay, so what all you have to pay is 21600, and then you will deduct the amount equivalent to 10% of 21600, that is 2160. So guys, this is all you need to pay, which is even less than 20,000 guys. For full preparation, even less than 20,000 is what you are paying if you use this referral code. So MSTCT is providing you the platform to learn with minimal tuition fees and to achieve your goals, right? So without wasting any further time, we will move to the next lecture, that is we will today start off with positional isomerism. So guys, this is positional आइसोमेरिज्म, ठीक है? पोजिशनल आइसोमेरिज्म. देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इन द लास्ट क्लास वी हैव लर्नड अबाउट चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम रहता था, ठीक है? सेकेंड जो था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्वियसली सेम रहेगा, तभी वो आइसोमेरिज्म है. तो इसमें तो कोई अलग बात हो ही नहीं सकती. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आइसोमर्स में सेम होना ही चाहिए, ठीक है? चेन अगर आइसोमर है तो क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए. मतलब अगर अल्कोहल है तो चेन आइसोमर उसका अल्कोहल में ही मिल सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं मिलेगा, ठीक है? सेकेंड, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस इन पेरेंट चेन और साइड चेन. तो पेरेंट चेन या साइड चेन के लेंथ में डिफरेंस होता था, है ना? फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे पास ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में पेरेंट चेन 4 कार्बन की है ना? तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन. तो यहाँ पे पेरेंट चेन 3 कार्बन की है, तो देयर इज अ डिफरेंस, है ना, इन द
parent chain, number of carbons in the parent chain, so that's why it would both will be called chain isomers of each other, chain isomers of each other. तो बेसिकली आइसोमेरिज्म क्या है, एक कंपैरेटिव टर्म है ना, जो दो चीज़ों के बीच में बताता है कि वो कौन सा आइसोमर रखते हैं, है ना। तो इतना हमने पढ़ा था लास्ट क्लास तक। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चेन के बाद में पोजीशन आइसोमर्स। ओके, चलो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो मस्ट है, होना ही चाहिए आइसोमर्स में, है ना। इसके ऊपर से सेम साइज भी होना चाहिए पेरेंट चेन का या साइड चेन का। पेरेंट चेन और साइड चेन का साइज भी सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द चेन शुड बी द सेम फॉर बोथ और फॉर ऑल द molecules that are compared together for isomerism, right? So पोजीशन आइसोमर के लिए कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो पेरेंट चेन और साइड चेन है ना, उनका लेंथ भी सेम होना चाहिए। बट द पोजीशन, है ना, ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट बी डिफरेंट। सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट बी डिफरेंट, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है कंपाउंड का, दो जो कंपाउंड आप कंपेयर कर रहे हो ए और बी, उन दोनों का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है सेम है ना, और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, बट फंक्शनल ग्रुप का जस्ट पोजीशन चेंज कर दिया गया हो सकता है मल्टी बॉन्ड हो, तो मल्टी बॉन्ड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मल्टी बॉन्ड जो है वो किन किन पोजीशन पे आ रहा है वो उतने ही ज़्यादा आपको पोजिशनल आइसोमर बनाकर देगा। एंड सब्स्टिट्यूएंट जो है वो वही है, बट पोजीशन उसने चेंज कर लिया है, ठीक है ना। तो नेचर क्या है, इसमें नोट क्या करना है, नोट ये करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है एंड सब्स्टिट्यूएंट है, मस्ट रिमेन द सेम, मस्ट रिमेन द सेम। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि पेयर ऑफ चेन आइसोमर में और पेयर ऑफ पोजीशन आइसोमर में देखो क्या क्या चीज़ें सेम है, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों तरफ सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। सेकंड आता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, इसका DU कितना होगा 1, आपको पता है कैसे निकालना है DU, है ना। तो अगर इसका DU 1 है ना, तो अगर हम साइक्लोहेक्सेन इसकी चेन को छोटा कर देते हैं, मान लो 4 की जगह 5 का कर देते हैं, तो पहली बात तो ये पोजिशनल आइसोमर नहीं है, ये चेन आइसोमर है, क्योंकि पेरेंट रिंग जो है उसका साइज़ यहाँ पे 6 रिंग मेंबर्स का रिंग है और यहाँ पे 5 मेंबर्स का रिंग है। लेकिन हम क्या करते हैं, आगे एक यहाँ पे स्पाइक ले लेते हैं जो कि साइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता। तो यहाँ पर भी DU 1 है ना, DU 1 है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा। ये आप करके देख लेना, हर बार सही आंसर आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर DU दोनों का सेम है, अगर DU दोनों का सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर दोनों का सेम है, और नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ये सब चीज़ें सेम है ना, तो DU सेम आने की वजह से यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम आएगा, है ना। जैसे इन दोनों में ही मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C6H12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये भी अगर देखोगे तो क्या है, C6 है, H12 है, दैट्स इट। तो ये दोनों आपस में क्या रखते हैं, आइसोमर तो बिहेव कर रहे हैं आइसोमर की तरह, बट कौन सा रिलेशन से, चेन हुए कि पोजीशन हुए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चेन हुए दोनों, क्या हुए, चेन, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट रिंग जो है वो 6 कार्बन की थी, यहाँ पे पेरेंट रिंग जो है वो 4 कार्बन की है।
क्या ये बात समझ में आई? ये दोनों आपस में चेन आइसोमर का कंपैरिजन रखते हैं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि अगर पेयर ऑफ सी आई है तो ऑब्वियसली पेयर ऑफ सी आई होने के लिए डी यू, मॉलिकुलर फार्मूला अगर सेम आ गया, डी यू का फार्मूला क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू सी प्लस वन प्लस एच प्लस एक्स माइनस एन होल डिवाइडेड बाई टू। तो डी यू जो है वो मॉलिकुलर फार्मूले से आता है, राइट। तो अगर मॉलिकुलर फार्मूला सेम हुआ सबके लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो डी यू भी कैसा होगा, सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है ना। हम लोग पी आई की बात कर रहे थे। फंक्शनल ग्रुप जो है, जो फंक्शनल ग्रुप इसमें होना चाहिए वही फंक्शनल ग्रुप इसमें भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी क्या है, सेम है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये बात हो गई पोजीशन आइसोमर की। अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये हो सकता है जो साइड चेन है ना, साइड चेन यहाँ पे डिफरेंट होता है और यहाँ पे सेम होता है, ठीक है ना। ये इस बात का ध्यान रखना। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मान लेते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 और यहाँ पे सी, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 2,2 डाईमिथाइल, 2,2 डाईमिथाइल, 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन है ना, तो 1 2 3, ओके। तो प्रोपेन कितना आ गया, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। आप देख सकते हो कि इन दोनों के पास में डी यू जो है दोनों का ज़ीरो है, इसका भी डी यू ज़ीरो है और इसका भी डी यू ज़ीरो है। डी यू ज़ीरो अगर दोनों का है और नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हाइड्रोजन अपने आप से सेट करोगे हर बार उतना ही आएगा। तो मैं कहता हूँ कि इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला ना वो क्या दिए गए हैं, सेम दिए गए हैं एक तरीके से, ठीक है ना। ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला एक तरीके से क्या दिए गए हैं, सेम दिए गए हैं, दैट्स इट। तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, मेरा मेन क्वेश्चन तो रह ही गया। ये पोजीशन आइसोमर रखते हैं। देखो यहाँ पे पेरेंट चेन की साइज़ छोटी ज़रूर हुई है, लेकिन अगर पेरेंट चेन में चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर में मुझे चूज़ करना पड़ेगा तो मैं चूज़ करूँगा पोजीशन आइसोमर। तो कभी भी चेन आइसोमर पोजीशन आइसोमर एक कंपाउंड में एक तरह से दिख जाए अगर तुमको, तो पोजीशन आइसोमर को ही लेना, चेन आइसोमर काम वहाँ पर नहीं आएगा, उसको चेन आइसोमर नहीं बोला जाता है। जैसे कि देख के लगता ज़रूर है कि दोनों चेन आइसोमर्स हैं, राइट, बट यहाँ पर ये आपका पोजिशनल आइसोमर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 पर एक ही कार्बन दिखता है, यहाँ पे 2 पर 2 दिखते हैं, इसीलिए 2,2 लगाया है, डाईमिथाइल है ना, उसके आगे लिखा है प्रोपेन, ठीक है। मेरे ख्याल से आप फंडा समझ गए होंगे। सिमिलरली अगर मैं और आपको पोजीशन आइसोमर्स दिखाऊं तो ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ऐसा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ऐसा मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो ये दोनों आपस में क्या है, देखो पेरेंट चेन या पेरेंट लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी 6 कार्बन थे, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, यहाँ पर 2 स्पाइक निकले थे, मतलब एक ही पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप तो 2 हैं बट एक ही पोजीशन पर नहीं है। तो जहाँ पे पोजीशन का डिफरेंस हो ना ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप में, या तो कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में, जहाँ पर फंक्शन का कोई दिक्कत हो ना, तो वहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या ये बात क्लियर है सभी को? और बताएं, ऐसा भी तो होता होगा, ऐसा भी होता होगा,
ये सारे के सारे आपके क्या हैं, 1 2 3 एंड 4, ये सारे के सारे पोजिशनल आइसोमर्स हैं, ठीक है, एक इधर पे एक इधर पे, ठीक है। नेक्स्ट, चलो इतने 4 काफ़ी हैं, ठीक है। चलो एक और करते हैं। तो इस बात पे हमें ये बात तो पता चल गई कि इन पोजिशनल आइसोमर्स एवरीथिंग इज सेम, everything is same, only position of side chain differs, ठीक है, इतना लिख देते हैं, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपाउंड है तो एक कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है, हाँ, ये दोनों भी तो आपस में आइसोमर्स हैं। देखो इसका भी DU 1 है, इसका भी DU कितना है, 1 है, ये भी हाइड्रोकार्बन है और ये भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। DU 1 हाइड्रोकार्बन दोनों के 1, तो नंबर ऑफ कार्बन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 कार्बन है और यहाँ पर भी 8 कार्बन है। इसका मतलब दोनों क्या हुए, इसका मतलब दोनों ये हुए कि दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, क्या है, आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग पोजिशनल आइसोमर्स भी कर लेंगे। चलो और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि ये है, जैसे कि है ना, ये है एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर। देखो मैंने पेरेंट चेन को नहीं छुआ है, साइड चेन को नहीं छुआ है, बस उसकी पोजीशन को चेंज किया है। ये है 1,2, ये है 1,3, ठीक है ना, मतलब ये 1 है, उसके बाद 2 आ जाता है, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 आ जाता है, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरह का कोई कंपाउंड है, ठीक है ना। इस तरह कंपाउंड को हम लोग दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला अरेंजमेंट है इसका, यहाँ पे हमने Me ले लिया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हमने Me ले लिया तो बाकी दो Me यहाँ पे शिफ्ट करने पड़ेंगे। Me मतलब मिथाइल, ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल होगा, यहाँ पे मिथाइल होगा, नहीं, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल। ये जितने भी सेट्स है गाइस, ये सारे के सारे क्या हैं, पोजिशनल आइसोमर। बताओ इसका कोई पोजिशनल आइसोमर होगा क्या। NO2, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर भी NO2 है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ऐसा क्यों है ना? मतलब ये क्या पोजिशनल आइसोमर है कि नहीं है, नहीं, ये पोजिशनल आइसोमर नहीं है, क्योंकि ये अकेला आइसोमर के रिलेशन में नहीं आ सकता। इसका कम से कम एक तो आइसोमेरिक साथी होना चाहिए, तो एक भी आइसोमेरिक साथी नहीं है, इसीलिए ये नीड का चैंपियन भी नहीं है, ठीक है ना। चलो थैंक यू, आज हम इतना ही करते हैं। guys please follow us, guys please, thank you, welcome to crack Maharashtra CET. Please join the channel, subscribe to our channel, leave the YouTube comments, and also don't forget to
don't forget to join us on the Telegram app. Okay, thank you everyone.